Yes, age related questions. Class 10. Chapter 3. Okay. Exercise 3.3. Question number third, sixth one. Okay. The word problem is 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present ages? So सबसे पहले आप let करेंगे. First of all, you have to let the present age of Jacob is x years and present age of his son is y years. Okay, now according to question, so what question states that after 5 years है ना, या 5 year hence, तो after 5 years age of Jacob will be x plus 5 and his son will be age of his son कितनी हो जाएगी y plus 5. यस और नो, है ना. 5 साल बाद दोनों की एज में +5 हो जाएगा. ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 5 years hence the Jacob will be 3 times of his son. तो बनी सी बात है, जेकब की जो एज है वो x plus 5 है और जो उसके सन की एज है वो y plus 5 है ना. अब आपको यहाँ पर एक क्लियर होगा, है ना, आपको मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि जो फादर की एज होती है वो ऑलरेडी सन से बड़ी ही होती है. तो अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो मैं 3 का मल्टीप्लाई किसके एज में कर दूं, जेकब के सन की एज में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो अभी बैलेंस हो गई है. सो x plus 5 equal to 3y plus 15. So x minus 3y equal to 15 minus 5. So finally x minus 3y equal to 10. This is your equation number first. Okay, यहाँ पे equation number first हो गई. ठीक. Then again 5 years ago, according to question फिर से 5 years ago age of Jacob was, तो जेकब की प्रेजेंट एज x है तो 5 years पहले क्या होगी x minus 5 years. Age of Jacob's son was y minus 5 years. Okay, now according to question ने क्या बोला है बेटा, 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son. Jacob's age was 7 times of his son. Okay, तो जो जेकब है उसकी एज है 5 years एगो की x minus 5 और उसके सन की एज है y minus 5. अब कंडीशन कैसी भी हो, फादर की एज जो है वो हमेशा सन की एज से बड़ी होती है. ठीक है, तो ये 7 का मल्टीप्लाई जेकब के सन की एज में मल्टीप्लाई करेंगे 7 का तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे. सो x minus 5 is equals to 7y minus 35 प्लस 7y साइड चेंज किया तो माइनस 7y माइनस 35 साइड चेंज किया तो +5. ओके, सो x minus 7y equals to minus 30. दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, अब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेट कर लेंगे, है ना, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे. x minus 3y equal to 10, x minus 3y equal to 10, ये सेकेंड इक्वेशन. ओके, सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर नहीं करना है. x minus 3y equal to 10,
x minus 3y equal to 10, this is your first equation, and x minus 7y equal to minus 30, this is your second equation. Okay, so what you have to do, just subtract both of these, minus plus प्लस, जो इक्वेशन सेकेंड है उसके साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, प्लस 7 माइनस 3 दैट इज 4y, प्लस 30 प्लस 40 10 दैट इज प्लस 40, so the value of y is 10. Now by putting the value of y in this equation number second या और first as you wish, like first में आपने put की तो 3 minus 3 into 10 equals to 10, so the value x minus 30 equal to 10, so the value of x is 40 years, 10 years. Okay, so the Jacob's age is 40 and his son's age is 10, present age. Okay, now अब इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन में कर रहा हूँ. तो वेरिफिकेशन आप देखें, सबसे पहले क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में, 5 years hence, तो अभी प्रेजेंट एज जो जेकब के सन की है वो 10 है, तो 5 year hence 15 हो जाएगा, और जेकब की हो जाएगी 45. तो 15 3 जा 45 आ रहा है क्या, तो देख लो 3 टाइम्स ही बोला था इन्होंने, है ना. देन प्रेजेंट एज जो है जेकब की वो 10 है ना, तो 5 years एगो इसकी हो जाएगी 5, और जेकब की हो जाएगी 35, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ रहा है क्या, यस. तो ये 100% वेरीफाई हो गया आपका क्वेश्चन. ओके, आई होप सभी को समझ में आया होगा एक बार. ओके, सो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकेंड one. 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? So there are two students or children, you can say there are two persons, one is Nuri and other one is Sonu. So let एज वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे, सबसे पहले आप उसमें प्रेजेंट एज लेट करेंगे. लेट Nuri's present age is x years and Sonu's present age is y years. Okay, now अब क्या बोला है, 5 years एगो. ठीक है, 5 साल पहले. 5 साल पहले क्या लिखेंगे अपन, नूरीज एज वॉज, तो नूरी की एज कितनी थी, x minus 5 years. Sonu's age was y minus 5 years. Okay, now according to question में क्या बोला है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. ये लाइन आप लिख लेंगे, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. ओके, तो फोकस रखें बोर्ड पे. नूरी, व्हाट इज द एज ऑफ नूरी, x minus 5. सोनू y minus 5. अब क्या बोला है, नूरी वॉज थ्राइस, मतलब नूरी बड़ी है, नूरी की एज ज्यादा है. ठीक है, तो नूरी की एज ज्यादा है, तो अगर इन दोनों को मुझे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए मैं किसकी एज में मल्टीप्लाई करूंगा, सोनूज एज में, है ना. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे. सोनू की एज में जैसे ही मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर लग गया साइन इक्वल टू. ओके, अब इसको सोल्व करेंगे. सो x minus 5 इक्वल टू 3y minus 15. ओके, साइड चेंज किया, so x minus 3y equal to 5 minus 15. So your final equation is x minus 3y equal to minus 10. This is your first equation. Okay, now again in the same question, 10 years later. Okay, question ने क्या बोला, 10 years later.
Nuri's age will be x plus 10 and Sonu's age will be y plus 10, है ना? आफ्टर 10 ईयर दोनों की एज में 10 ईयर का इंक्रीमेंट हो जाएगा. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है ऐसा बेटा कि Nuri will be twice as old as Sonu. So what is the age of Nuri? Nuri will be twice. Okay, Nuri की एज है x plus 10 और सोनू की एज है y plus 10. अब Nuri twice है. ओके, Nuri क्या है? twice है. तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा सोनूज एज में, ताकि दोनों के दोनों बैलेंस हो जाए. सो x plus 10 इक्वल टू 2y plus 20. ओके, साइड चेंज किया. सो x minus 2y इक्वल टू 20 minus 10. So finally the equation is x minus 2y equal to 10. This is your second equation. Okay, now what you have to do, you have to solve this both equations. Okay, तो करते हैं solve. First equation है x minus 3y equal to minus 10 and the second equation is x minus 2y equal to 10. Okay, so by applying elimination method, sign change, plus x minus x cancel, minus 3y plus 2y, that is minus y, and that is minus 20. So the value of y is 20. Now by putting this value in the equation number second, what you'll get? X minus 2 into 20 equals to 10. So you'll get the value of x as 50 years. Okay, now क्रॉस चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है गलत. Nuri was thrice as old as Sonu. तो 5 years ago, ये प्रेजेंट एज आई है दोनों की, है ना? तो नूरी जो है, नूरी की प्रेजेंट एज है 50 और सोनू की प्रेजेंट एज है 20. तो 5 years ago की बात करें तो नूरी की एज थी 45 और इसकी एज थी 15. तो देख लो ये थ्राइस है, तभी दोनों इक्वल होंगे. 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा सोनू की एज में. ऐसे ही 10 years आफ्टर या हेंस एक ही बात होती है. तो 10 years आफ्टर नूरी की हो जाएगी 60 और इसकी हो जाएगी 30. तो 30 2 60 ट्वाइस हो रहा है. तो 100% वेरीफाइड हो गया क्वेश्चन आपका. ओके,